welcome Siddharth sir, welcome Gaurav sir, welcome Nimisha ma'am. और आप सबको हम दोनों की तरफ से राम राम। क्या बात है विशाल, स्वास्तिक में आ गई तुम्हारे मुंह से राम राम निकल रहा है। और ये निकलना भी चाहिए। आप सिद्धार्थ पता है कि हम सब जब भी कुछ भी ऐसा मौका होता है तो राम राम ही क्यों कहते हैं? जब आप किसी से मिलो तो राम राम, जब आप किसी से विदा हो तो राम राम। कुछ अच्छा हुआ जैसे आज तो राम राम, कुछ बुरा हुआ तो भी राम राम, कोई मिसहैपनिंग हो तो भी राम राम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देवनागरी स्क्रिप्ट में एक राम का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 54 होता है और राम राम बोलने से 54 प्लस 54 मतलब 108, यानी नाम जप की एक माला पूरी हो जाती है। क्या बात है। वैसे तुम्हें पता है आज स्वास्थ्य की अपनी एक माला पूरी करके दूसरी माला शुरू करने वाला है। क्या मतलब? मतलब स्वास्थ्य ने अपना एक ग्रैंड शो रामायण ग्रैंड सक्सेस के साथ पूरा किया है और एक नया वीर हनुमान को लॉन्च करने वाले हैं। जिन्होंने इसे क्रिएट किया है, इसकी परिकल्पना की है, वो स्टेज पर आए और इसके बारे में बताएं। हम वेलकम कर रहे हैं गौरव बनर्जी सर का और स्वास्तिक प्रोडक्शन के फाउंडर, वेंटोर, स्टोरी टेलर भाईवा श्री सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी का। प्लीज आप दोनों मंच पर आए। सर, तो मैं चाहती हूँ कि आप गौरव सर को एक प्यारी सी यादगार देकर उन्हें स्वास्तिक में वेलकम करें। Just a few words for the journey that I've had with this person standing over here. आज हम यहाँ खड़े हैं इतने सालों में, आज महाभारत की शुरुआत हुई. You know, I've been my whole journey over so many years has been such a great association with Gaurav over the years, starting from Star to where we are today. I think thanks a lot, Gaurav, for everything that has happened in the journey. Even Srimad Ramayan, from Sony to Sub to going with the whole flow of the whole Love Kush story that I really wanted to tell. You know, I've not met somebody who has always been so supportive, always supported the creative thought process and gave the right vision in moving ahead. So thanks a lot for coming for this special occasion today. Today we are celebrating a journey that we've had with Srimad Ramayan, the effort that the whole team has put in getting such a legendary story to life, and the new journey thanks to you of Veer Hanuman that starts. So thanks a lot. Thanks a lot for everything. Just a few words for you. Thank you, Sid. Thanks a lot. And my big congratulations to everyone involved. So I just wanted to say that I have known Siddharth and Swastik through Mahabharat for about 12, 13 years. I think 2013 we launched the show. And I vividly remember our first intense conversation. And his and my story, you know, it's a good arc. And writers can be proud of that arc. Because the first intervention that I made in his life and in the life of Swastik was to go to my boss at that time and say, "Show ko please band kar dijiye." I was the guy. So, you know, Sid is very gratefully saying that I'm responsible for the show. But that happened later. I think the first thing, and I knew nothing about the show. I had never spoken with him about this show. I had never been in a story session. But I had gone to say, please shut the show down. Right? And my reason for shutting the show down was it was taking too long. And I kept hearing from other folks that it was going to launch somewhere later. So from there it turned, and I was told that why don't you go and just see the show, see what's happening. And then after that, if you feel that it should still be shut, okay, we'll shut it. But at least go and find out what's going on. So I said, okay, that's a fair ask. And that's when I met Sid, and we had our first sort of very meaningful, deep conversation about Mahabharat, why he wanted to tell it, how was he seeing the show, how was he seeing the characters. And I remember talking to Vivek. Vivek had been my boss at Star. And I asked him, saying, why did you choose Sid? So he said, he gave me a great answer, which sort of stayed with me. He said, I had seen the show that Sid had done at Z.
called Agle Janam, and the characterization was fantastic. So I thought that, that characterization, bringing it into Mahabharata would be amazing. And I left that discussion saying, okay, we're going to do this show, and I'm going to put my weight behind it. But I must know that you're committed, because this is you get one shot, right? You get one shot to tell the Mahabharata. You're not going to get a second shot. You're not going to get a second shot. I'm not going to get a second shot. So are we sure we want to do this? Because this is one shot. And he showed me his tattoo, which said one life. Saying, absolutely. So I think the bond was made there on the ground floor of Masterpiece. And we have never looked back. I think I'm very proud of the team at Swastik and what got done in Mahabharat. I have had the pleasure of being part of many shows in the entertainment world. There is no show that I'm more proud of than Mahabharat. Really makes you special, Gaurav. Thanks a lot for coming and for this particular day, because Srimad Ramayana again has been very, very, very close to our hearts. I never thought that महाभारत के बाद कभी रामायण बनाने की मौके मिलेंगे, और क्योंकि ये कहानियां ऐसी नहीं है कि आप डिसाइड करते हो, ये आपको चुनती हैं, ऐसा मुझे लगता है. सो थैंक्स अगेन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग. तो अब हम बात करेंगे जी हाँ एक ऐसे शो के बारे में जिसका आज शुभारंभ है. तो बोलो तो बोलिए प्रेम से बजरंग बली की. जी हाँ, आज हम इस भव्य शो का शुभारंभ होने वाला है. चलिए बिना वक्त गवाए आज जिस शो का शुभारंभ होने वाला है उसे देखते हैं. बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की. जी हाँ, बहुत ही अद्भुत शो है. स्वास्तिक को और सोनी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत ही खास शो है ये. लेकिन मुझे ना थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने हनुमान जी को नहीं देखा यार. पहले भी तुम्हें दुख था, अभी भी तुम्हें दुख है. ये दुख खत्म नहीं होता है यार. बिल्कुल खत्म होगा. तुम सोमवार से शनिवार रोज 7:30 बजे सब टीवी के सामने जाके बैठ जाना, तो तुम्हें बजरंग बली जी दिख जाएंगे और तुम्हारे दुख भी खत्म हो जाए. पक्का? पक्का. वैसे मानना पड़ेगा, ऐसे ग्रैंड शो सिर्फ स्वास्तिक ही बना सकता है. 100%. स्वास्तिक प्रोडक्शन जो है उसका नाम आज एंटरटेनमेंट के आकाश पर छप चुका है. लेकिन विशाल, ये रातों रात नहीं हुआ है. इस फर्श से अर्श तक का सफर बहुत सारे सालों का है. टू बी प्रिसाइज 17 years. और इन 17 सालों के सफर को चंद मिनटों में समेटने की असंभव बहुत संभव कोशिश की है हमने. आइए उसकी एक झलक हम सब देखते हैं. सत्रह साल से मीडिया के पिच पर नॉट आउट खेलते रहना, और पिच कैसी भी हो शानदार खेलते रहना, बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ हर मैच को जीतना, और इसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहते हैं. पता है शिव्या तुम्हें? स्वास्तिक में इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल पढ़ा जाता है, क्योंकि इतने सालों से ना हम हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करते आए हैं. क्योंकि स्वास्तिक के पीछे एक ऐसा रॉक सॉलिड विजनरी शख्स खड़ा है जो सबसे पीछे रहते हुए भी अपनी पूरी टीम को आगे का रास्ता दिखाते हैं और दिखाते आए हैं. वो हैं हमारे सबके प्यारे सिद्धार्थ सर. तो जानती हो शिव्या, मुझे लगता है ना कि जो हमारे सिद्धार्थ सर है ना, वो सिर्फ कहानीकार नहीं है. कलाकारों की पूरी टोली बसती है इनके अंदर. 100%. जो कार्य ये करके दिखाते हैं ना, मुझे लगता है कि इस पूरे हॉल में कोई ऐसा शख्स होगा या व्यक्ति होगा जो करके दिखा पाएगा. और ऐसे व्यक्ति पर एक फिल्म तो बनती है, हालांकि 3-4 घंटे की बनती है मेरा बस चले तो, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व पर एक छोटी सी झलक फिर से दिखाते हैं. प्लीज एवी.
started this company so that we all can have some respect in life for the work we do. So that is the essence of Swastik. The creator of some of the most spectacular epics of our time. वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी मेरे लिए. इट वाज ओनली द फेथ एंड द लव फॉर द स्टोरी. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस कहानी को कहने के पीछे इतनी मेहनत होगी जब मैं उसके अंदर घुसा, बिकॉज आई वाज अ वेरी यंग बॉय. Blending powerful narratives with breathtaking visuals, deep emotions and timeless wisdom. Siddharth Kumar Tiwari has brought legends to life like never before. A visionary, a master storyteller, a creator of timeless sagas. So nice for all of you to take out time and come today for this very, very, very special day of my life. A lot of things make this day very, very special. So thanks again for all of you take out time from your busy schedules, and as always, so thank you again on that. For me, today is not just a day of celebrating the success of Srimad Ramayana. For me, it's about reflecting from where we were, the thoughts that we had, and where are we going from here. Yeah, very emotional, very good to see what I just saw. Actually, काम करते करते ये realize नहीं होता है कि journey कैसे जाती है. So अच्छा लगता है जब आप देखते हो कभी बैठकर ऐसे जब ध्यान से कि शायद ये आपने किया है. ऐसा लोग कहते हैं कि सब शायद मैंने किया है, पर मैं एक वही कैलकाटा का बच्चा हूँ जो एक सपना लेके बम्बई आया था, और आज तक वो सपना रोज़ देखता हूँ. और मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें मैंने की हैं. मुझे लगता है मैं जो एक शब्द होता है वो हमारे हर स्टोरी में जहाँ पे भी किसी इंसान ने मैं किया है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, every story of our history tells us that it's always a we. Nobody does everything alone. It's always together. I'm very glad that you guys clap for me. I feel good. It makes me feel good. But I would not be standing here without you all. So, सबसे important चीज़, clap for yourself. Today is a day of celebration. All of us in the room, if we get together, we can build something that our generations will be proud of. ऐसे शो के लिए सिर्फ तालियां नहीं, कुछ और बनता है. सम्मान बनता है ऐसे शो के लिए, और हर उस शख्स के लिए बनता है सम्मान जो इस शो से जुड़ा हुआ है. अब तालियां होनी चाहिए. और सिद्धार्थ सर का मानना है कि अपनी टीम को सिर्फ तालियों से नहीं, अवार्ड से, मोमेंटो से फेलिसिटेट करना चाहिए. वैसे तो शुरुआत हमें भगवान राम से करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले बुला रहा हूं उस नाम को जो नाम स्वयं राम से भी पहले लिया जाता है. तो स्वागत कीजिए और प्लीज वेलकम हमारी सीता मैया प्राची बंसल. इतना ब्यूटीफुल शो में काम करने का आपने मुझे मौका दिया है, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती. मतलब माई पेरेंट्स आर सो प्राउड, आई मेड देम प्राउड. क्या बोलूँ, आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम माई हार्ट. अब आ रहे हैं वो जिन्हें कुछ देना मतलब तेरा तुझको अर्पण. सब कुछ उस राम का है, उन्हें भला हम क्या दे सकते हैं. हम सिर्फ सम्मान दे सकते हैं और सम्मान दे रहे हैं. सो माय फेवरेट, जो रील और रियल में भी राम ही हैं, प्लीज वेलकम आवर राम, सुजय रिहू.
इनकी जर्नी नहीं मालूम है। जिस टाइम पे हमने काम करना स्टार्ट किया रामायण पे एंड टुडे कुछ बताओ सबको अपनी जर्नी के बारे में, बिकॉज ये तुम्हारे लिए इजी नहीं रहा है, ये मुझे मालूम है, पर मैं चाहता हूँ कि यू शुड शेयर व्हाट यू आर फीलिंग टुडे। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। इतनी इमोशनल जर्नी रही है ये, इतनी इनक्रेडिबल जर्नी रही है, और इतनी स्वीट मेमोरीज है। मतलब मैं यहाँ पर गिनाने बैठूँ तो शायद पूरा समय बीत जाएगा, पर जब हमने रामायण की जर्नी स्टार्ट की थी और मैं मॉक शूट्स के प्रोसेस से गुजर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहा था कि मैं श्री राम बनूंगा नहीं बनूंगा। मैंने सर को भी ये बात बोली है, पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं अपने कॉन्फिडेंस से भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं इमेजिन कर पा रहा था श्री राम। मैं सर ये कई बार बोल चुका हूँ और आज भी बोलूँगा, ये सर का फेथ था मुझ पर, जिसके वजह से ये जर्नी मैं पूरी कर पाए हो। और लोगों का प्यार जो मुझे मिला, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने हमारे शो को देखा, इतना प्यार दिया। लोग मुझे आके बोलते थे कि हमें आप में ही श्री राम की छवि दिखती है। मतलब ये मैं सुन के इनिशियली एम्बैरेस हो जाता था, क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जब लोग आके मुझे बोलते थे कि आप में श्री राम की छवि दिख रही है। तो मेरा एज एन एक्टर बहुत ही लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस शो में। सबसे पहले सर, मैं आपके विजन को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज ये विजुअलाइज करना श्रीमद् रामायण जिस स्केल पे हमने इस टेलीविज़न पे बनाया है, वो विजन उसको विजुअलाइज करना, तो सर ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। और जब सेट पे हम काम करते थे तो हमारी पूरी की पूरी यूनिट, सिद्धार्थ देवटिया भाई, मैं इनके बारे में एक स्पेशल चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस हमने किए थ्रू आउट, चाहे वो राम सीता का सेपरेशन हो, सीता हरण हो, भरत के साथ जितने भी सीक्वेंसेस, हर इंपॉर्टेंट सीक्वेंस पे वो सेट पे रह के हमको एक एक इमोशन बताते थे कि क्या क्या करना है, और वो पूरी तरीके से इतने पैशनेटली एनग्रॉस्ड होते थे कि हमारा काम आसान हो जाता था। मैं जेन्युइनली ये बात बोल रहा हूँ। और मुझे एक किस्सा याद है कि जब उत्तर रामायण में हम वो राम सीता का सेपरेशन कर रहे थे, तो मैं बहुत थका हुआ था, बिकॉज बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, एक के बाद एक सीन हम कर रहे थे, और बहुत सारे के सारे सीन्स बहुत हैवी थे, वो बहुत ही इंटेंस इमोशनल सीन्स थे। जब मेरा क्लोज चल रहा था तो मैं एकदम ब्लैंक खड़ा था उसमें, और ये सिर्फ मैं ही जानता था कि मैं पूरा ब्लैंक हूँ, मैं बिकॉज बहुत टायर्ड था। वो सर ने पहचान लिया सर समझ गए कि तू ब्लैंक लग रहा है। मैंने बोला सर आपको कैसे पता? बोलता मुझे सब पता है, तो मुझसे नहीं छुपा सकता। ये इनका काम करने का लेवल है, तो थैंक यू सो मच। और अमोल जी थैंक यू सो मच। अमोल जी से रिलेटेड मुझे एक किस्सा याद है कि जब हमारा शो जस्ट लॉन्च हुआ था और जनवरी का मंथ हम शूट करते, आई गेस स्वयंवर का सीक्वेंस था और बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था तो हम लोग मैं कई बार इन बिटवीन शॉट्स में थोड़ा सा सीट पे बैठे बैठे नैप ले लेता, तो सर मुझे आके उठाते थे और बोलते थे आज आजा तेरा शॉट रेडी, जल्दी से 2 शॉट दे और घर चला जा तो वो मुझे आज भी याद है। थैंक यू अमोल जी। हमारे डायरेक्टर्स सुमित सर के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने उनके साथ एक पहले भी शो किया था, हम रहे ना रहे हम, और जो कि स्वस्तिका ही था, और अब मैंने रामायण में उनके साथ काम किया। मैंने उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज हम दोनों ऑन सेट्स भी इतनी सारे हमने डिस्कशंस किए। उन्हें भी किताबें पढ़ने का शौक है, मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक है। हमने इतने सारे डिस्कशंस किए और मैंने उनके वर्क एथिक्स से बहुत कुछ सीखा है। और जब उन्हें मौका मिलता था तो मुझे एडवाइस देते थे आके कि तुझे भी ये करना चाहिए, तू ऐसा कर, तो अपना वर्क एथिक्स इंप्रूव कर। तो वो बातें आज भी मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ। और सुमित सर थैंक यू सो मच। कमल जी कमल सर के लिए तालियां एक बार जोरदार। कमल सर के बारे में तो क्या कहना है, वो तो मुझे लगता है हम सभी के फेवरेट है। और जितना भी टफ सीक्वेंस क्यों ना हो, मैंने उनको कभी भी स्ट्रेस में आज तक देखा ही नहीं है। उनका हमेशा ये रिएक्शन होता है कि हाँ ये तो हो जाएगा तो कमल सर थैंक यू सो मच। और हमारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी क्योंकि हम लोग बहुत डिस्कस करते थे ये सब। और हमारी पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम, ताहिर भाई थैंक यू सो मच। हमेशा मुझसे ऐसे ही मिलते हो, हमेशा डे 1 से मुझसे ऐसे ही मिल रहे हैं, मेरे राम कह के बसंत और हम लोग की केमिस्ट्री तो मैं क्या बोलूँ, मतलब हम लोग एक्चुअली में हमें लगता था कि हम असली के राम लक्ष्मण ही है सो थैंक यू बसंत। निकेतन भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं,
और हमने साथ में बहुत कम शूट किया है, लेकिन जितने भी सीन्स हमने शूट किए हैं वो बहुत ही इंटेंस रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स जो हमने शूट किया है साथ में। और निकेतन भाई की जो मतलब वर्क एथिक है, वो जिस तरह से डेडिकेटेड रहते हैं सेट पे और बहुत होमवर्क करके आते हैं वो हर सीन के पीछे। तो निकेतन भाई, मैंने ये चीज़ आपसे सीखी है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए होमवर्क कैसे करके आना। ही इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड एवरी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर, थैंक यू वंस अगेन। और मैं उन व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया और हमें हमारे शो को इतना सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सुजॉय। अरे हाँ भाई, हनुमान जी, सो सॉरी हनुमान जी। और हमने तो इतना हंसी मजाक किया है कि मैं मतलब वो लिस्ट गिनाने जाऊँ तो वो भी कम पड़ जाएगा हनुमान जी। बट आपके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। और अगेन ये भी बिल्कुल कूल एज आइस, मतलब किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं इनको लाइफ में, हमेशा बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं वो। हाँ, वो दूसरों को सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग। सुजय, आपको सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। यू नो, रामायण बना रहे हैं आप श्री राम का किरदार कैसे कौन प्ले करेगा आज के मॉडर्न डे $1 million क्वेश्चन। यू नो, तुम दोनों राम नहीं प्ले कर सकते। सॉरी, दे आर सेइंग मी। You know, it was one of the most toughest challenge, you know, for Srimad Ramayan was the fact that कि हमें श्री राम वो इंसान चाहिए था जो आज के दौर में इस लेवल की सिंप्लिसिटी रखता हो कि वो इमोशन को एग्जैक्टली क्या कहते हैं कि किसी को हम रिएक्ट नहीं करें, हम श्री राम रिस्पॉन्ड करते हैं। वो ठहराव, वो नॉलेज लेवल्स, वो कमिटमेंट टूवर्ड्स योर क्राफ्ट, you know, the way you worked on your physique and the way you built your physique. Why, Basant, we know about how well he has built the physique from where he was, right? So वो dedication, वो genuineness and just the way you are, और जो तुमने अभी कहा, this basically proves that, you know, you are the best Ram. You were, thank you so much, Vijay. Big round of applause. You should clap yourself. Clap for your own self today. Please. अब आ रहा है एक भाई जो भाई के राज्य में नहीं वनवास में हिस्सा मांगता है, जो भाभी को गले के हार से नहीं पाँव की बिछिया से पहचानता है। लक्ष्मण जैसा भाई भी किस्मत से मिलता है और बसंत जैसा कलाकार भी किस्मत से ही मिलता है। हमारे लक्ष्मण बसंत भट्ट का स्वागत। The one and only. बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। ऑब्वियसली सुजय ने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कह दिया, जो मैं फील कर सकता हूँ वो सब कुछ सुजय ने कह दिया। एंड आई थिंक हम सब जितने लोग इस शो के पार्ट रहे हैं, हम सब ने एक चीज़ तो फील करी है कि ये शो एक ऑर्डिनरी शो नहीं था। ये शो जब हम प्ले कर रहे थे, जब बना रहे थे, उस वक्त हर किसी ने मेरे ख्याल से वो एक डिवाइन एनर्जी फील की है, किसी पॉइंट पे ज़रूर की होगी। मैंने तो की है, मैंने एक बार नहीं कई बार की है। और इसका जिक्र करने का मौका कभी ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल हर किसी के लिए, सारी प्रोडक्शन टीम, हमारे डायरेक्टर्स, को एक्टर्स एंड ऑब्वियसली सर। आपको तो जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच। बस सुजॉय ने सर को थैंक यू नहीं बोला था। तो बसंत एंड वी हैव वर्क टुगेदर ऑन राधा कृष्ण। ही इज प्लेड बलराम ऑलरेडी। तो बसंत ने मुझसे पूछा दैट ओके फाइन, तो how do you think I should play Lakshman? You know, how should I play Lakshman? So I told him, you know, you just be who you are. You are Lakshman. तो बोलते हैं, what do you mean by that? मैं तो aggressive बिल्कुल नहीं। मैंने बोला बिल्कुल नहीं हो, प्रोडक्शन से पूछ लो। So thanks for playing who you are, Basant. You know, with such a naturalness. No, but because Sujay के साथ में, you know, I needed somebody who could just be you know, very very different at the same time core same हो,
क्योंकि लक्ष्मण और हनुमान जी में क्या डिफरेंस है, हम ये डिस्कशन करते थे कि दोनों ही भक्त हैं अपने भाई के, तो दोनों में फ़र्क क्या है, यू नो वो क्या चीज़ थी जो तुम्हें ह्यूमन बनाती है, उन्हें वानर बनाती है, यू नो सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हमने रखने की कोशिश की. एंड थैंक्स अ लॉट बसंत फॉर playing the way you have done it. A small token of appreciation. Thank you, sir. Thank you so much. अब आ रहे हैं वो जिन्हें हम कहते हैं लंका नरेश यानी लंकेश यानी निकेतन धीर. कहते हैं राम और रावण में बस इतना फर्क है, राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था. लेकिन हमारे निकेतन को बस इस बात का ज्ञान तो है ही कि वो अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ रावण हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अभिमान नहीं है. आई थिंक हम एक्टर्स की जर्नी में आप सब जब अलग अलग लोगों के साथ काम करेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स के साथ, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर आपसे बहुत वादे करता है, लेकिन जो आप शूट करते हैं या जो इमेजिन होता है और जो दर्शाया जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. तो एज एन एक्टर यू लैंड अप फीलिंग चीटेड, बट वाई आई रिस्पेक्ट हिम सो मच इज़ बिकॉज ये ऐसे इंसान है जो कहते हैं वो करते हैं. I had so much freedom as रावण के जो लिखा जाता था कितनी बार हम उसे बदल देते थे, but I had complete freedom कि as long as you are in the realm of our universe you can say what you like. So I think this kind of freedom allows you to blossom as an actor और आपको एक मौका मिलता है to do your best. और यहाँ मैं काम करने आया था उमरगांव में, लेकिन कई सारे दोस्त बने और दो लोग ऐसे मिले जिन्हें मैं एक भाई मानता हूँ. ये तो मेरे भाई पहले से ही थे, पर दो ऐसे लोग मिले मुझे जो जिनसे मेरा ज़िंदगी भर का एक रिश्ता बन गया है. एक है सिद्धार्थ भैया और एक है मेरे डायरेक्टर सुमित ठाकुर. आई थिंक रावण जिस ट्राइपॉड पे खड़ा है हमारे शो में, जिसको अच्छा लगा है, वो 1, 2 और 3 इनके रहते हुए आई वॉज सो कम्फर्टेबल एंड आई हैड सो मच फेथ कि आई कुड जस्ट डू थिंग्स विदाउट thinking too hard about it. So I think thank you for that. दशरथ यानी हमारी 10 इंद्रियां, जो अपने 10 रथों को अपने वश में रखता है, उसी के भीतर से राम का जन्म होता है. Please welcome our Dashrath, Arav Chaudhary ji. Thank you once again. महाभारत के बाद में तकरीबन 10-11 साल तक स्वास्थ्य के साथ मैंने कुछ नहीं किया. फिर रामायण आया और रामायण में मुझे लगा कि करने को ऐसा कुछ क्या होगा, मुझे लगा कुछ खास नहीं है. तो मुझे कहा गया नहीं आप सुन लीजिए. मैंने सुना और जैसा भी इन्होंने कहा कि दशरथ कैसे बने, महाराज नेमी कितने पराक्रमी योद्धा थे और किस पराक्रम के कारण वो दशरथ बने, तो वो पूरी की पूरी कहानी जो आपने बताई और जिस तरह से उसे फिल्माया गया, ट्रस्ट मी, आफ्टर महाभारत द नंबर ऑफ फिल्म्स, द नंबर ऑफ टेलीविजन वर्क दैट आई हैव डन, रामायण और दशरथ प्ले करते ही इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना आदर ऑडियंसेस से फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली, पीपल कॉलिंग फ्रॉम US, पीपल कॉलिंग फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज एंड सेइंग के कितना अच्छा है. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. दशरथ, स्मॉल लिटिल जब हमें काम पड़े तो हम राम को याद करते हैं, जब राम को काम पड़े तो वो हनुमान को याद करते हैं. हनुमान वो भक्त हैं जो भगवान बन गए और निर्भय वो कलाकार हैं जो हनुमान बन गए.
तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे हनुमान जी का। बजरंग बली की जय। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे को इंडस्ट्री में ही सर लेके आए हैं। महाभारत में मैं दुशासन था और वो मेरा फर्स्ट शो था और ये सर का बड़प्पन है, उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं खुद को ही नहीं करता क्योंकि वो हो गया बस में सेलेक्ट। और अब भी इतने बड़े शो में हनुमान जी की भूमिका मेरे को दी, इतना भरोसा मेरे पे दिखाया, तो उसके लिए सर को मैं थैंक्स बोलता हूँ। अगर सर नहीं होते तो शायद मैं आज एक्टर भी नहीं होता, मैं पता नहीं कहीं कुछ छोटा मोटा काम ही कर रहा होता। सर के वजह से ही मैं आज यहाँ तक हूँ और इस स्टेज पे हूँ। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। थैंक यू सो मच निर्भय। जैसा हम सब निर्भय को बचपन से जानते हैं इसकी बेस्ट पार्ट ये, एक बार बसंत ने मुझे कहा कि सर ये इंसान जैसे हैं कि कोई भी सिचुएशन हो वहाँ जोक करते रहते हैं, कभी सीरियस कभी हुए ही नहीं लाइफ में। इनको मैंने कभी सीरियस देखा ही नहीं है। तो मैं बोला इसीलिए वो हनुमान जी है, उनको कोई सीरियसनेस नहीं है, वो जीता है अपने हिसाब से। ही ऑलवेज हैज दैट स्माइल ऑन हिज फेस, यू नो। you've really done made me really proud, really proud. Thank you so much. Small little talk. महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन बोल रहे थे हमें भी स्टेज पे बुलाओ। तो अब आ रही हैं वो जिन्होंने कैरेक्टर के तौर पर तो उनके नाक कट गए थे, लेकिन एक्टर के तौर पर अपनी नाक बनाई है उन्होंने। जी हाँ, संगीता उडवाणी हमारी शूर्पणखा। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच मुझे शूर्पणखा के लिए चूज़ करने के लिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर भी प्ले कर सकती हूँ, वो भी शूर्पणखा इतनी डिटेल में कोई एक्सप्रेस कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जैसे जैसे ये शो धीरे धीरे बढ़ता गया और सीन्स बढ़ते गए, पहले तो मुझे लगा कि ठीक है अब यहाँ पे शूर्पणखा का कैरेक्टर फिनिश हो गया। देन थोड़े से गैप के बाद फिर से शूर्पणखा आई एंड ऐसे करते करते लास्ट मंथ तक मैंने शूर्पणखा का कैरेक्टर प्ले किया और इतने इमोशंस प्ले करने का मौका मिला। निकेतन के साथ बहुत सारे सीन्स थे एज अ भ्राता एंड सिद्धार्थ तेवतिया सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी हेल्प की मेरी। बहुत सारे सीन्स ऐसे थे कि जहाँ मुझे इमोशंस समझ में नहीं आ रहे थे, बट सिद्धार्थ सर ने एक एक सीन इतनी अच्छे से डिटेल में बताया कि नहीं वो याद कर पहला वाला कि जब भाई जा रहा था और वापस आ रहा है। और पूरा शो ऐसे ही हंसी मजाक में निकला। थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगा उस किरदार को जो कि किरदार मतलब अगर समझे तो वो बहुत बड़ा राम भक्त है, जिन्होंने धर्म को अपने परिवार के ऊपर समझा। लेकिन अफसोस कि हम उस भक्त का नाम नहीं रखते। जी हाँ, जिसे कहते हैं हम विभीषण। कुणाल। 10 years, 9 shows with Swastik. Whoa. Started with Suryaputra Karn, then Karmfaldatta Shani, Mahakali, Radha Krishna, Devi, Ramayana, Shiv Shakti, Lakshmi Narayan, and now Veer Hanuman. So thank you so much for everything. I think from the last 10 years, it's been more than I think 8 years. I'm in Umargaon only. 2 साल मैं बॉम्बे में रहूँगा, बाकी 8 साल उमरगांव में निकले हैं. And whenever I get a call from Swastik, I know Siddharth sir has called me and I'm always there. I have never asked what I'm doing, where I'm doing, no idea. But I always trust him and thank you so much once again for so much of love, respect and everything. One thing about Ramayana is कि Ramayana का first day, first shot, I was there and last day, last shot I was there. So that's a very blessed feeling. Thank you so much. Jai Shri Ram. Thank you so much. Thank you, Kunal.
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बुलाते हैं हम अपनी गीता खन्ना मंत्रा को। लेजेंडरी गीता खन्ना, प्लीज कम मैम। मैंने ऐसा परफेक्ट शो अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मैंने बहुत सालों से मैं काम कर रही हूँ, मैंने मैथोलॉजी नहीं किया है, and I was a little apprehensive to do this role because I didn't like Mantra character at all. But then Siddharth said, "Nee, I have faith in you. You'll be able to do it." So from day one when I started, I just got into it and I said I have to do it well. और मुझे बहुत कुछ कहना, लेकिन I know time short है. But thank you so much, and a big salute to you, Siddharth, for giving me this role. तो अब हम बुलाना चाहेंगे ऐसे शख्सियत को जिनकी बातें कोई काटता नहीं, ऐसे तो मतलब डिपार्टमेंट ही ऐसा कुछ है। जी हाँ, विनीता चुगलानी मित्तल, एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर सोनी। Just one word. It's been a brilliant show, and thank you so much for that. Thank you. We as Sony will always remember it. जो शो 130 एपिसोड के लिए कमीशन किया गया था, we were just mentioning 350 क्रॉस हो गए, हमें पता भी नहीं चला। सेट, सोनी, सब पे चल के now live. So thank you so much. अब हम बुलाना चाहते हैं पीयूष रंजन परमार को, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सोनी चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच सर। इस शो के लिए बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि बचपन से ही मेरे दादाजी ने मुझे रामचरितमानस और रामायण की कहानियाँ सुना के बड़ा किया है, और फाइनली जब मैंने शो करना शुरू किया उसी को एक जीने जैसा था, तो बहुत कुछ मेरे लिए भी सीखने के लिए था और बहुत कुछ करने के लिए था। थैंक यू सो मच। अब मैं उस शख्स के बारे में बात करूंगा या बुलाना चाहूंगा, स्वास्तिक के सुप्रसिद्ध डायरेक्टर, प्लीज कमल सर स्टेज पे आइए आप। हम लोग सिद्धार्थ सर को सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं क्योंकि हम इनके विज़न पे बहुत ही ज़्यादा हम विश्वास रखते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, और हर प्रोजेक्ट को हमने मन से किया है, सारी टीम ने किया है। मैं सबका थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू स्वास्तिक। अब मैं उनको बुलाने जा रही हूँ जिनकी वजह से हम सुंदर दिखते हैं। हम जैसे दिखते हैं, हमें गॉडेसेस कहा जाता है, हमें गॉड बोलते हैं लोग, हमारे कपड़ों को हमें इतना प्यार देते हैं, और जैसे हम दिखते हैं उसका रीजन जो है, और जिन्होंने स्वास्तिक के इतने बड़े बड़े शोज में इतने सुंदर सुंदर किरदार बनाए हैं, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। शिवप्रिया जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। How are you feeling today? हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। What do I say? It's 8 years in Swastik, and I've always accepted this. I will say this once more. I have only for me, it's just been a one-man show. I have only followed his vision. I think my work is personally taken care of by the Supreme himself, and at Swastik Productions, Swastik family, we will always, we have done well, we are doing well, and we will keep doing better, because the last shloka of the Bhagavad Gita says, Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partha Dhanurdhara, Tatra Sri Vijay Bhuti, Dhruva Niti Matir Mama. Wherever there is Krishna, the master of all yogis, and wherever there is Arjun, the master archer, there has to be victory, opulence, prosperity, power, and infallible morality. We have one more unsung heroine here, the Sia behind our Ram. Gayatri ma'am, is she around? She deserves a big round of applause because I worked with them very closely, and she stands like a pillar behind him and behind all of us.
She's always a silent worker, never in the limelight, but I love her. तो शिवप्रिया से मैं पहली बार कलकत्ता में जो मेरा घर है, हमारे घर में हर संडे सुंदरकांड का पाठ होता है और पूजाएं होती हैं, और एक प्रैक्टिस है जो मेरे पापा ने स्टार्ट किया था कुछ 20 साल पहले से, तो वो चला आ रहा है. सुनो ना. So one fine day I meet शिवप्रिया there and she's a complete devotee. वो आकर मंदिर में हर संडे आती हैं घर पे. मैं जब कलकत्ता जाता हूँ तो मैं मिलता था. One fine day I asked her, so what do you do? After at least meeting her the 20th or 100th time. She told me, I'm a designer. I said, so you design? I said, yeah. So what do you do in Calcutta? I said, I design in Calcutta. तो उन्होंने बोला, आप क्या करते हैं? तो मैंने बोला, हम एक शो बना रहे राधा कृष्ण और हमारा लुक ठीक नहीं हो रहा है, हम 5 लुक टेस्ट कर चुके हैं. So there she came from Calcutta to Bombay, you know, and Radha Krishna was her first show that she ever did in television, you know, and that too with the kind of scale that we have of 500 juniors, this, that and the other. But the way she designs, जो रामायण की ज़रूरत थी कि श्रीमद् रामायण में श्री राम दिखने कैसे चाहिए, you know, माता सीता दिखनी कैसी चाहिए. I think only a bhakt like her could design it so well. Thank you so much. अब मैं बुलाना चाहती हूँ अजय भलवनकर सर को, बिजनेस हेड सोनी सब. पहले मैं अजय सर के बारे में बताता हूँ. You know, me and Vikas, we were these youngsters who were just trying to make a tell stories and एक जर्नी शुरुआत हो जिंदगी की. तो वहाँ मैं अजय सर से मिला. He was heading Zee TV then. और उन्होंने हमको एक हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, एक कहानी हमने कही थी, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो. सो अजय भालवांकर हैज़ बीन वन ऑफ द पायनियर्स इन आवर मीडिया इंडस्ट्री. He has seen Swastik grow in front of his eyes. He's always believed in us and extremely grateful for, you know, being a part of this journey of my last 17 years. Thank you so much, Ajay. A few words from you. Thank you guys. I think Swastik team is a fantastic team. I think the passion what I saw in him 16 years back, right, is still alive and is still stronger, I would say. The big deal is that, you know, even Srimad Ramayana, you know, the way the show was designed, the way I was seeing some clips, and, you know, you talked a lot about Mahabharat. But Srimad Ramayana, I was just telling Nimisha some time back that, you know, iski production quality, budgets I will not talk about, but production quality was like really, really superb. I'm looking forward to Veer Hanuman being an outstanding show, and tomorrow you saying that, you know, Veer Hanuman is the show that is pride of Swastik Productions. अब मैं बुलाना चाहती हूँ मेरी फेवरेट निमिषा पांडे मैम, प्रोग्रामिंग हेड सोनी सब. So I have known Nimisha since I wanted to. मैं कलकत्ता से आकर जब यहाँ जॉब करता था बॉम्बे में, तो मैं सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन में जाने के पहले मैं सोनी मैक्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था. And I was as curious as I am today. You know, I was looking for somebody who could give me the exposure of how a story is told. How does actually work happen? Because I was working in a movies channel. All right? And here I became a friend with this girl called Nimisha Pandey, working in Sony at that point in time, who started sharing scripts with me as to how scripts are written, how stories are being done, you know. That's how we became friends. Then, when Ambardhara happened, which was our first show, she was the creative director of Ambardhara. She had left the channel that time, and our beginning story, and she was the creative director of Ambardhara because we didn't know anything. Kaise production hota hai, how do you go about doing things, you know. And of course, you know, I can't even begin to thank her on that front because, you know, if that did not happen, we would not have even started. We would not have reached anywhere because we didn't know how to begin. So thanks a lot for making us start. Thank you so much for being there. 4 शब्द निमिषा मैम.
सब लोग 17-18 साल स्वास्तिक 17 साल की बात कर रहे हैं, बट आई नो ऑफ स्वास्तिक व्हेन स्वास्तिक वाज नॉट अ नेम. Swastik was only a dream. This was 20 years back when Siddharth just had this dream and absolutely zero idea of how that dream will come true. Vikas, of course, believed in that dream from day zero. And it's just really beautiful to now stand here after 20 years to really see that dream come true. So I'm really, really happy for you, and I'm very happy to see the Swastik family grown to what it has grown, from an extremely small makeshift office to now what I see as a huge Swastik Bhumi. So all the very best, and I really, really hope that now that after 2 decades we are working together, I really hope that Hanuman is extremely, extremely special. I know it's already special to you, but I truly hope that Veer Hanuman can outperform every single show that we have, you have, Sub has. तो मैं बुलाना चाहूंगा अब हमारी पार्वती माँ को, जिनका नाम है ऐश्वर्या राज. आप सभी को और आप सभी के भीतर के शिव को मेरा प्रणाम. मेरा ये फर्स्ट शो था स्वास्तिक के साथ. ऑल थैंक्स टू सिद्धार्थ सर, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतना बड़ा किरदार निभा पाऊँ. तो एक शो के छूटने का दुख जरूर है, बट एक नए शो की शुरुआत की खुशी भी है. वीर हनुमान जो स्टार्ट होने वाला है, और सर ने अगेन मुझे इस लायक समझा कि मैं उसमें फिर से पार्वती कर सकूं. थैंक यू सो मच टू स्वास्तिक, एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली. और अब बुलाना चाहूंगा मैं स्टेज पर हमारे डायरेक्टर सुमित ठाकुर और लोकनाथ पांडे. मैं बहुत लकी हूँ. मैं सिद्धार्थ सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा. जैसे अभी मैंने शो रील देखा कि स्वास्तिक के 18 साल हुए, मैं भी इमोशनल हो रहा था. ये शो भी हाँ मैंने किया, वो भी मैंने किया, वो भी मैंने किया. तो अमर धरा से लेकर माता की चौकी, फिर महाभारत, महाकाली, राधा कृष्णा, श्रीमद् रामायण और अभी वीर हनुमान. तो मैं सिद्धार्थ सर को बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए और आत्मविश्वास देने के लिए. थैंक यू सर. और ये है सुमित. आई थिंक सुमित हैज जस्ट नाउ अभी निकितन वाज टॉकिंग अबाउट कि एक और भाई बना है उसका सेट पे. और यू नो सुमित रामायण, श्रीमद् रामायण स्टार्ट होने के 2-2.5-3 महीने पहले, 4 महीने पहले से ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एग्जीक्यूशन फ्रंट पैरेलली व्हाइल वी वर राइटिंग. And Sumit was involved in all of it that we were doing in that direction, on storyboarding, how we were going to shoot it, and what the characters would be. So he was a part of the whole journey. Closer to shoot, उसने मेरे को बोला मेरे को 5 मिनट बात करनी है. बोला क्या हो गया? तो उसने बोला कि मैं रावण पकड़ के चलूँ क्या? तो मैं बोला रावण पकड़ के चलना, क्योंकि हम लोग shoot wise, because you know you catch a character and you go with that. He said रावण में मजा आएगा, हम लोग रावण करेक्टली करेंगे. सुमित सर, आज रावण ने आपकी बधाई की, कैसा लग रहा है आपको सुनकर? हाँ, सबसे पहले तो जय श्री राम सब लोगों को. अब बोलने को तो मैं बहुत लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन थोड़े में होई सोई जो राम रची राखा. तो मुझे सर ने आशीर्वाद दिया, काम करने का मौका दिया, ऊपर से गाइड किया, और ये भी बोला कि 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब भी कुछ पूछना है मुझे कॉल कर और पूछ ले. और ये मैंने फिर सर को खूब परेशान किया. अब उसके बाद सर ने मेरे लिए आसान ये कर दिया कि भाई को ले लिए.
तो भाई का जैसे ही ऑडिशन हुआ और हम लोग मिले एक दो बार कि कैसे करेंगे, तो हमारा डायलॉग और हमारा स्क्रिप्ट, सपोज हम 2 डायलॉग लिख के लाते थे और वो 3 पेज अपने लिख के लाते थे कि भाई इसमें ना ये वाला हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मुद्रा ऐसी हो सकती है और श्लोक ये हो सकते हैं। तो हमारा काम भाई ने बहुत आसान कर दिया। लव यू वेरी मच भाई, इससे बढ़िया रावण हो नहीं सकता था, ये कमाल हो गया। अब मैं बुलाना चाहती हूँ ललित सेन सर और हर्षित सक्सेना को। Sir, how are you feeling after so many years? चिपक गया क्योंकि श्रीमद् रामायण बहुत डिफिकल्ट था सर, बिकॉज अभी हम आज यहाँ खड़े होके हम ये कर सकते हैं, पर मुझे अभी भी याद है जब हम शुरुआत में मिल रहे थे कि हम लोग किस तरीके से ये सारी चौपाई, दोहे, गाने हम कैसे करें और आपको ये जो सुर आपने फाइनली पकड़ा। सर, आपने क्या टेक है आपका, कैसी रही आपकी ये जर्नी रामायण की? जय श्री राम। जब शुरू हुआ प्रोजेक्ट तो ये था कि मैं भी डरा हुआ था कि ये गाने तो बहुत किए, बहुत अवार्ड भी मिले, तो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, काफ़ी गाने बने और जब ये बना तो कलेक्टिवली सबको पसंद आया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गाना जो है ये मैं हिंदुस्तान में नहीं था, बाहर था। जब मुझे लिरिक्स आए तो गाना कनाडा में बना। तो सोचिए कि राम जी की मतलब पूरी पृथ्वी में उनका बोलबाला है, तो ये गाना कनाडा में बना। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इतने सारे सॉन्ग्स हैं, एक एक गाना आता था। क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आपके व्यक्तित्व में चेंज आने लग जाए, कोई चीज़ करके आपके व्यवहार में पॉजिटिविटी आने लग जाए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो मेरे को श्रीमद् रामायण करके मिली। बहुत बहुत थैंक यू मेरे को रामायण की आवाज़ बनाने के लिए और स्वास्तिक परिवार का हिस्सा बनाने से। थैंक यू सो मच। अब मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ जिनसे स्वास्तिक बनता है। साहिल अंसारी सर, विनोद शर्मा सर, अमोल सुर्वे सर, सिद्धार्थ तिवेतिया सर, वीर धवल पुराणिक सर, प्लीज स्टेज पर आइए। These are the people for which I am primarily standing here. There are many more of you as well, but they are the primary pillars on which we are standing. The core fulcrum is standing behind, not wanting to come in over here. That Gayatri Gill is standing there. But let me start today with the people who made Srimad Ramayana memorable. ये जो हमने गाना सुना है, title song, the lyrics has been written by Vinod Sharma. काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायण, ये Vinod Sharma hai, I think one of the most passionate writers who fights every day with everybody without a reason also. Need not have a reason, he can just fight. He loves fight. Sharma ji, how are you feeling today from the time we started? कहते हैं ना कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो तत्र पार्थ धनुर्धर। अब हम लोग अर्जुन बने ना बने, ये कृष्ण रहने वाले हैं। और वो जो लगाम होती है ना सारथी वाली, वो घोड़ों पे नहीं हम पे पड़ती है। बेसिकली बीच में कितना ही जोर, उसको प्रॉपर जमीन नहीं मिलेगी ना, जहाँ पनपे फले फूले तो कुछ नहीं हो सकता। तो जमीन स्वास्थ्य है। और ऐसे ही अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो हम सब ने मिलकर फोड़ा। काफी लोग हैं जो अभी यहाँ नहीं है या यहाँ पे स्टेज पे नहीं है। भरत है, विवेक है, गौरव है, सबके बिना नहीं होता।
Science been how many years now? 15 years. 15 years. He's the casting director of Swastik for the last 15 years. You know, everybody you see in the room has been cast by him. Everybody over the years. You know, the planning of it, understanding the character, writing it down, then giving options. Sahib, कैसा रहा है जो? बहुत खूबसूरत, क्योंकि कहानीकार जो है वो उसका दिल बहुत खूबसूरत है और वो आप हैं। मैं कह सकता हूँ कि अगर खूबसूरत दिल की कोई तस्वीर होती तो आपके जैसी होती। और हम आपके विजन को लेकर, आपके कहानी कहने के लहजे को लेकर एक्टर्स के सामने जाते हैं, घूमते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि जब बहुत शुरुआती दौर होता है तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, सिर्फ ख्यालों में होता है, और आप हम पे बिलीव करते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Viru, you know, we have worked before on Shani, Razia, and then now on Ramayana and Veer Hanuman. कैसा रहा Viru journey? You know, how was it for Ramayana for you? Because it was very tough. We know this was 1 hour in the beginning. Yet had to do a certain quality, so I know it was tough. First of all, I will take this opportunity, this platform, to ask you कि I want better lenses the next time. You can't say no on this platform. Are you listening? I was thinking that I have worked with you when you were just a producer, and I worked with you when you turned director. And I remember Swastik had a different postal address that time. I had worked in that small little room where there was only one machine. So, in all those years, I think the DNA has remained the same. And because of people like Amol, Tahir, and Siddharth, the DNA is the same. However difficult the situation is, we go for it. And I think Ramayana is the result of it. So, thank you. Thank you, dear. Then I come to the one and only Tahir Khan. Tahir Khan को यहाँ कौन नहीं जाना? ये वो Tahir did Mahabharat. Yes, right? Mahabharat. I think हम सबके लिए वो पहला हिस्टोरिकल था, और वहाँ से करते हुए अब श्रीमद् रामायण। ताहिर खान, कैसा लग रहा है? मैंने शुरुआत की थी माँ नहीं तेरा पिता, सूर्य के लिए शो था। उसके बाद हमने किया था वो हुआ, उसके लिए बहुत शुक्रिया गुजार मैं आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू ताहिर। और फिर मैं आता हूँ मेरे हनुमान जी, इनको लोग कृष्ण कहते हैं उमरगांव में, पर सिद्धार्थ, आई थिंक रामायण की जर्नी तुम्हारे लिए भी बहुत स्पेशल थी। क्या कहना है उसके बारे में? लोग जब शुरू में बात भी करते थे कभी भी कि रामायण करनी है और ये करना है, तो इट्स लाइक कि रामायण जैसी कहानी है, उसको करने के बाद एक अलग सा सेटिस्फेक्शन फील होता है कि उसको हम अच्छे से कर गए, इस तरह की कहानी को, इस तरह के इमोशंस की कहानी को, तो एक बहुत ही जैसे कहते हैं तृप्ति फील होती है। शोज तो बनते हैं बनाते हैं हम लोग, बट रामायण जैसी कहानी को करने के बाद एक तृप्ति फील होती है। और एक नन्ही सी बात यह है कि हम लोग, दैट इज द थॉट दैट वी ऑल फॉलो के शूट तो हो ही जाएगा, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, कैमरे का लाल बटन दबाओ तो शूट तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, पर ठीक ही होगा। बट व्हाट वी ऑल ट्राई कि जादू कैसे क्रिएट हो, दैट इज व्हाट द ऑडियंस विल फील, दैट इज व्हाट दे विल फील द डिफरेंस कि यार बाकी सब बना रहे हैं, दीज पीपल आर क्रिएटिंग मैजिक। तो वो हम पूरा लिखना, द सेट एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंसेस, लुक्स एंड एवरीथिंग, that is where we try to create magic, and that is what makes us different. Now finally I talk about this man, जिसका नाम अमोल है, जिसका मेरे लिए तो ये simply अमूल्य है। No, he's priceless. You know, I feel Dada, as I call you, from being a writer to becoming a creative in Mahabharata to, you know, doing all of it that you're doing right now with all these people, everybody working with you, all of them. How are you feeling after Srimad Ramayana? तो दो चीज़ें बोलूँगा, प्राउड एंड ब्लेस्ड। प्राउड इसके लिए क्योंकि शायद बहुत कम लोग होते हैं जिनको महाभारत और रामायण दोनों करने मिलते हैं। तो
very few people get to do both the epics. So I'm blessed. And thank you so much. Thank you so much. Writing team, you are the best. मैं बुलाना चाहती हूँ रामायण से मिथिला फैमिली को। वीर हनुमान।